John Chambers for many years now. His affection towards India is very, very strong. A few years ago, he was awarded the Padma Shri honor. Friends, the theme of this year is a relevant one, navigating new challenges. When the year 2020 began, did anybody imagine this is how it would pan out? A global pandemic has impacted everyone. It is testing our resilience, our public health systems, our economic systems. The current situation demands a fresh mindset, a mindset where the approach to development is human-centric, where there is a spirit of cooperation between everyone. Friends, while looking at the way ahead, we should keep our focus on ramping up our capacities, securing the poor, future-proofing our citizens. This is the path India is taking. India was among the first in creating a responsive system of lockdowns. India was among the first to advocate the use of masks and face covering as a public health measure. We are also among the earliest to create public awareness campaigns about social distancing. In record time, medical infrastructure was scaled up, be it COVID hospitals, ICU capacities, and more. Starting from one testing lab in January, we now have around 1,600 labs across the country. The outcome of these efforts has been that a country with 1.3 billion people and limited resources has one of the lowest death rates per million in the world. The recovery rate is also steadily rising. I am happy that our business community, in particular small business, been proactive. From almost nothing, they made us the second largest PPE kit manufacturers in the world. This is in line with India's spirit of challenging the challenge to emerge stronger. In the last few months, the nation has battled COVID and other natural crises such as floods, two cyclones, locust attack. But it has only made the people's resolve stronger. Friends, through the entire COVID-19 period and the lockdown, the government of India was clear on one thing: the poor have to be protected. The Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana for India's poor is among the largest support system seen anywhere globally. Free food grain is being provided to 800 million people. This scheme operates for 8 months. 800 million people means
more than double of USA's population. Free cooking gas is being provided to around 80 million families. Cash support has been provided to around 345 million farmers and needy people. The scheme has given much needed employment for migrant workers by creating almost 200 million person days of work. Friends, the pandemic has impacted several things, but it has not impacted the aspirations and ambitions of 1.3 billion Indians. In the recent months, there have been far-reaching reforms. These are making business easier and red tapeism lesser. Work is actively underway on the world's largest housing program. The renewable energy infrastructure is being expanded. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले आपको चीन के खिलाफ भारत की नई किलेबंदी के बारे में बताएंगे। भारतीय सेना कैसे चीन से लगी पूरी सीमा पर आजकल कड़ी चौकसी कर रही है। चीन अब आगे क्या करता है, सब यही जानने के लिए आतुर हैं, क्योंकि चीन चुप बैठने वालों में नहीं है और इसके लिहाज से अगले 4 से 5 सप्ताह बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो एक्शन होना है वो अगले 4 से 5 हफ्तों के बीच ही होना है, क्योंकि उसके बाद इस इलाके में सर्दियों का मौसम शुरू हो जाएगा और यहां युद्ध लड़ना तो बहुत दूर की बात है, सेनाओं के लिए यहां टिके रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। आने वाली सर्दियों के लिए सैनिकों की तैनाती के लिए भारत अब यहां इंतजाम कर रहा है। डीएनए में हम इस पूरी रणनीति का विश्लेषण आज आपके लिए करेंगे और बताएंगे कि कैसे चीन चारों तरफ से इस समय घिरा हुआ है। इसके बाद हम भारत पर मंडरा रहे उस खतरे के बारे में आपको बताएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। ऐसा लगता है भारत के लोगों ने कोरोना वायरस से दोस्ती कर ली है, हमने उसके साथ जीना सीख लिया है। अब हमें कोरोना से नहीं बल्कि मास्क से डर लगता है। हमने अपनी सारी सावधानियों को अब अनलॉक कर दिया है। भारत के किसी भी शहर में आप चले जाएं, आपको ऐसा लगेगा जैसे वायरस का कोई डर कहीं है ही नहीं, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। सच्चाई यह है कि भारत दुनिया में कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है और हम बहुत जल्द पूरी दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं। भारत करीब 4 महीनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन में रहा और इस दौरान ज्यादातर लोगों ने अपना समय अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताया। आपको लगता होगा कि भागदौड़ भरे इस जीवन में जब लोग एक दूसरे के करीब आए होंगे, परिवार के साथ समय बिताया होगा, तो उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मधुर हुए होंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में इसका ठीक उल्टा हुआ है। देर से जागने, खाना खराब बनाने और देर तक फोन पर बात करने को लेकर अब घर घर में आपस में झगड़े हो रहे हैं। महिला आयोग और अलग अलग राज्यों की पुलिस के आंकड़ों के अनुसार देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। छोटी छोटी बात पर घरेलू हिंसा और तलाक के कारणों का विश्लेषण आज हम आपके साथ मिलकर करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चीन और भारत के बीच तनाव की खबर की, क्योंकि ये खबर अब बढ़ती जा रही है। आज तक हम देखते आए हैं कि हमेशा चीन एक्ट करता है और भारत उसके बाद रिएक्ट करता है, लेकिन अब समय बदल चुका है। लद्दाख में पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना को खदेड़ने के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि चीन का अगला कदम क्या होगा। इस इलाके में जल्द ही सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है और चीन को जो कुछ भी करना है उसके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। 4 से 5 हफ्तों का समय ही बचा है, चाहे वो भारत हो या चीन। भारतीय सेना इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती है। लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन से लगी सीमा पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने कहा है कि भारत सीमा पर शांति चाहता है, लेकिन किसी भी चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत तैयार है। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे इस समय लेह में हैं। वो 2 दिन के दौरे पर आज सुबह ही वहां पहुंचे हैं और आर्मी चीफ का इस तरह मोर्चे पर जाना और
ये दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इससे यह भी पता चलता है कि हमारी सेना के हौसले कितने बुलंद हैं और इरादे इस समय कितने आक्रामक हैं। चीन का खतरा सिर्फ लद्दाख में नहीं है, देश की पूर्वी सीमा यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन कभी भी कोई भी हरकत कर सकता है। एक दिन पहले ही वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया पूर्वी सीमा के फॉरवर्ड एयर बेसिस के दौरे पर होकर आए हैं। एक तरफ भारतीय सेना ने चीन पर दबाव बनाकर रखा है, दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कूटनीति का दांव चला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत किसी भी मुद्दे का हल बातचीत से निकालने में ही विश्वास रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि बातचीत में अब भारत का पलड़ा भारी है। It is clear that the situation we witness over the past 4 months is a direct result of the actions taken by the Chinese side that sought to effect unilateral change of status quo. These actions resulted in violation of the bilateral agreements and protocol which ensured peace and tranquility in the border areas for close to 3 decades. लद्दाख ही नहीं, भारत और चीन के बीच लगभग 3,400 किलोमीटर लंबी पूरी सीमा पर इस समय भारत की सेना और वायुसेना फुल अलर्ट पर हैं। हिंद महासागर में भी चीन की गतिविधियों पर भारतीय नौसेना नजर रख रही है। भारतीय सेना जानती है कि खतरा सिर्फ चीन से नहीं है। चीन जब मुश्किल में होता है तो वो पाकिस्तान को अपने एक प्यादे की तरह इस्तेमाल करता है। इसलिए देश की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान की तरफ भी सेना अब हर खतरे के लिए तैयार है। और आज जनरल बिपिन रावत का अचानक इस तरह का यह बयान देना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको जनरल बिपिन रावत की यह बात सुनाना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर जनरल बिपिन रावत ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ एक खास संदेश देने की कोशिश की है। We have our protocols in the way we want to ensure peace and tranquility along the borders. We have our border management protocols which have been signed between us and China right from 1993 onwards, and we have modified these protocols continuously. But of late we have been seeing some aggressive actions by the Chinese, but we are capable of handling these in the best suitable way. We have our tri-services, that is the Army, Navy and Air Force, capable of dealing with our threats along our frontiers. कुल मिलाकर चीन के खिलाफ भारत ने अब एक रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है, क्योंकि आपको याद होगा हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि भारत ने लद्दाख में जो चीन के साथ हमारी सीमा लगी हुई है, पेंगोंग झील के आसपास फिंगर इलाके में भी बहुत रणनीतिक इलाकों पर अब अपना कब्जा जमा लिया है। ये वो इलाके हैं जहां 1962 के बाद भारतीय सेना पहली बार पहुंची है और रणनीति के हिसाब से ये इलाके बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हम आपको जैसा बताते आ रहे हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर जो सेना जितनी ज्यादा हाइट पर रहती है उस सेना को उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। और इस समय रणनीतिक इलाकों में भारत की सेना चीन की सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा ऊपर हाइट्स पर बैठी है, क्योंकि हमने बहुत महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं वहां पर, जो महत्वपूर्ण पहाड़ों की चोटियां हैं, उन पर हमने अपना कब्जा जमा लिया है। और क्योंकि भारत की सेना अब ऊंचाई पर बैठी हुई है, वो चीन की सेना पर ठीक से नजर रख पा रही है। और बहुत सारे इलाके अब ऐसे हैं जहां चीन और भारत की सेना एक दूसरे के सामने हैं। फिंगर इलाके में भी, पेंगोंग झील के आसपास के इलाके में भारतीय सेना और चीन की सेना आमने सामने खड़ी हुई हैं और दोनों एक दूसरे के फायरिंग रेंज में हैं। अब चीन को यह सोचना है कि वो इस पूरी स्थिति के बाद युद्ध करना चाहता है या बातचीत की टेबल पर आकर इस समस्या को सुलझाना चाहता है। चीन आगे क्या करेगा, इसके लिए अगले 4 से 5 सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि अक्टूबर के बाद लद्दाख के इलाके में सर्दी बहुत बढ़ जाती है और इस दौरान वहां पर कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन चलाना आसान नहीं होता। चीन की मुश्किल भी यही है और कि भारत अब काफी ऊंचाई पर पहुंच गया है और चीन की सेना जहां नीचे बैठी हुई है, उसके लिए भारत की फौज से ऐसे मौसम में लड़ना आसान काम नहीं होगा। हम भारतीय सेना के इस पराक्रम से जुड़ी एक और विशेष जानकारी आपके साथ आज शेयर करेंगे।
29 अगस्त की रात को चीन के सैनिक भी ब्लैक टॉप और उसके पास की पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहते थे। भारत और चीन के सैनिकों से लगभग एक ही वक्त में इस चोटी पर चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने बहुत कम वक्त में इन पहाड़ों की चढ़ाई पूरी करके इन चोटियों पर कब्जा कर लिया। यानी चीन की सेना भी इन चोटियों पर पहुंचना चाहती थी और भारत की सेना भी पहुंचना चाहती थी। दोनों कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के सैनिक इन चोटियों पर चीन की सेना से पहले पहुंच गए और चीन के सैनिक जब तक इन चोटियों पर पहुंचे तो वहां पहले से ही भारतीय सैनिक मौजूद थे। भारतीय सेना को पहाड़ों पर लड़ने वाली सबसे मजबूत सेनाओं में से एक माना जाता है। पहाड़ की लड़ाई में भारतीय जवान शारीरिक तौर पर हमेशा चीन पर भारी पड़ते हैं। इसका नमूना हम गलवान घाटी में 15 जून और 16 जून को हुई घटना में भी देख चुके हैं, जब नीचे होने के बावजूद भारतीय सैनिकों ने चीन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि भारत के जो सैनिक हैं, पहली बात यह है कि उनकी ट्रेनिंग पहाड़ पर रहने के लिए, पहाड़ पर लड़ाई करने के लिए पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। उन्हें पहाड़ पर एक बहुत अच्छे योद्धा के तौर पर ट्रेन किया जाता है। और दूसरा, भारत के जो सैनिक हैं उनको आदत है इस तरह के टेरेन में ऑपरेट करने की। हम आपको उन हालात के बारे में अब बताएंगे जिनके कारण चीन की सेना बुरी तरह से अब फंस गई है। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सर्दियों में कोई भी कार्रवाई बहुत मुश्किल होती है। उसके बाद अगले वर्ष तक भारतीय सैनिक जहां पर मौजूद हैं उसी को लाइन ऑफ कंट्रोल मान लिया जाएगा। यानी ब्लैक टॉप और उसके पास की पहाड़ियों पर भारतीय सैनिकों को हटाने के लिए चीन किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई नहीं कर पाएगा। इस दौरान भारतीय सेना को अपनी स्थिति मजबूत बनाने का और समय भी मिल जाएगा, तैयारी का और समय मिल जाएगा। भारतीय सेना 20,000 सैनिकों को लद्दाख के उस इलाके में रहने का अब इंतजाम कर रही है। इनमें वो सैनिक भी शामिल होंगे जिन्हें आराम या इलाज के लिए आगे के मोर्चे से पीछे भेजा जाएगा। पिछले साल तक पूर्वी लद्दाख में लगभग 15,000 सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन इस समय यहां पिछले साल से 4 गुना ज्यादा यानी करीब 60,000 सैनिक तैनात हैं। जवानों को यहां की कड़ाके की सर्दी में सुरक्षित रखना सबसे बड़ी चुनौती होता है। सर्दियों में चुशूल का तापमान 0 से 30 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है, यानी -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। इसके लिए खास तरह के थर्मल टेंट्स की जरूरत पड़ती है जिनमें रहकर सैनिक मोर्चा संभाल सकें। अक्टूबर के बाद से पूर्वी इलाकों में जरूरी सामान की सप्लाई भी बहुत मुश्किल हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगला 1 महीना सैनिक कार्रवाइयों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी समय चीन की तरफ से हमला होने की सबसे ज्यादा आशंका है। LAC पर मौजूदा हालात भारतीय सैनिकों के लिए अनुकूल हैं। कुछ दिनों पहले चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने भारतीय सेना की पहाड़ों पर लड़ने की क्षमता की तारीफ की थी। भारत की माउंटेन फोर्स दुनिया में सबसे ताकतवर मानी जाती है और इसमें 2 लाख से ज्यादा सैनिक भी हैं। इतने सैनिक दुनिया की किसी माउंटेन फोर्स के पास नहीं है। यानी ये 1962 का भारत नहीं, बल्कि ये 2020 का भारत है। इसलिए चीन को किसी तरह के भ्रम में अब रहना नहीं चाहिए। उसे भी यह एहसास जरूर होगा कि कोई भी दुस्साहस अब उस पर भारी पड़ सकता है। हम लोगों को हाई ऑल्टीट्यूड में, माउंटेन वॉरफेयर में बहुत सालों से लड़ने की आदत है, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे हाई ऑल्टीट्यूड में और माउंटेन में लड़ने में थोड़ी सी परेशानी आती है। रेरिफाइड एटमॉस्फेयर है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा तेज चलती है, आदमियों को खाने की परेशानी होती है, सोने की परेशानी होती है, फ्रॉस्ट बाइट, चिलब्लेन की तकलीफ होती है। लेकिन जब आपको इस बारे में मालूम है उससे कैसे बचा जा सकता है तो आप बच सकते हैं। और हमारे जो सैनिक हैं वो इस बात में एक्लिमेटाइज होकर के ही रहते हैं। जहां तक चीन का सवाल है, चीन में कॉन्स्क्रिप्शन होता है। चीन में जो मैंने देखा है वो अपने अपने बैरकों में रहते हैं। वो सर्दियों में या नॉर्मल इसमें वो सामने मेरे को कभी नहीं दिखते। वो आते हैं गाड़ियों में जो सेंट्रली हीटेड गाड़ियां हैं और वापस अपने इस पे चले जाते हैं कमरों में जो सेंट्रली हीटेड है। ऐसे उनको तकलीफ होगी। चीन को उस माहौल में जबरदस्त तकलीफ होने वाली है। अब खास बात यह है कि चीन से लगी इस सीमा पर जहां की हम आपको बात बता रहे हैं, पिछले साल सर्दियों तक भारतीय सैनिकों की यहां पर कोई तैनाती नहीं होती थी, लेकिन इस वर्ष हालात बदल चुके हैं। ऐसे में सैनिकों को समय समय पर आराम देना और सैनिकों की नई यूनिट को तैनात करने की प्रक्रिया अब चलती रहेगी। लेह जैसी जगहों पर बड़ी तादाद में सैनिकों को हर समय अच्छे हालात में तैयार रखना एक बहुत जरूरी होता है। भारतीय सेना ने इसकी तैयारी अब शुरू कर दी है।
चीन को सबक सिखाने के लिए भारत ने जो कदम उठाए हैं उन्हें समझने के लिए आज हम आपको विदुर नीति के बारे में बताना चाहते हैं। महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक हैं विदुर। वो हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के भाई थे। विदुर अपने समय के कूटनीति और धर्म के सबसे बड़े जानकार माने जाते हैं, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। कूटनीति के बारे में उनके विचारों को विदुर नीति कहा जाता है। आपने शायद ना पढ़ा हो, लेकिन विदुर नीति आज के समय में भी बहुत कारगर साबित होगी। उनकी इसी नीति को भारत ने चीन पर लागू करने की कोशिश की है, और वो नीति क्या है अब आप देखिए। विदुर ने कहा था, शठे शाठ्यम समाचरेत। इसका मतलब है जो जैसा करे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। अगर कोई आपके साथ युद्ध करना चाहे तो आपको भी उसके साथ युद्ध करना चाहिए। विदुर के अनुसार शत्रु के साथ संधि यानी समझौता तब करना चाहिए जब आप कमजोर हो, यानी अगर शत्रु आपसे ज्यादा मजबूत है और आप जानते हैं कि आप कमजोर हैं, तब आपको संधि करनी चाहिए। शत्रु बहुत आक्रामक हो तो अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए ताकि वो आगे कोई दुस्साहस न करे। चीन के साथ एलएसी पर तनाव के बीच स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का नाम भी अब आजकल काफी सामने आ रहा है। यह वही फोर्स है जिसके जवानों ने 29 और 30 अगस्त को एलएसी पर ब्लैक टॉप और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा किया था। इसे विकास रेजिमेंट भी कहा जाता है। आज आपको इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम बताना चाहते हैं। वर्ष 1962 में भारत और चीन युद्ध के बाद विकास रेजिमेंट की स्थापना की गई थी और ये एलएसी पर तैनात रहते हैं। इस फोर्स की स्थापना मेजर जनरल सुजान सिंह ने की थी। मेजर जनरल सुजान सिंह 22 माउंटेन डिवीजन के प्रमुख थे, इसलिए इस फोर्स को एस्टेब्लिशमेंट 22 का नाम भी मिला था। विकास रेजिमेंट का हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चक्राता में है और कहा जाता है कि वर्ष 1962 के युद्ध के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने भी इस फोर्स के जवानों को ट्रेन किया था। शुरुआत में इस फोर्स में सिर्फ तिब्बत के लोगों को भर्ती किया जाता था और आजकल इसमें गोरखा भी शामिल होते हैं और ये पहाड़ी इलाकों में युद्ध करने में माहिर होते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अक्सर भारतीय सेना के साथ मिलकर ऑपरेशन करती है, लेकिन यह सेना का हिस्सा नहीं है। यह फोर्स सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशों पर अपना काम करती है। विकास रेजिमेंट ने वर्ष 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध और कारगिल वॉर में भी हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि विकास रेजिमेंट ऐसे मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लेती है जो टॉप सीक्रेट होते हैं, बहुत गोपनीय होते हैं। इनसे जुड़ी ज्यादातर खबरें क्लासिफाइड होती हैं, इसलिए हम इसके बारे में आपको हम भी और ज्यादा नहीं बता पाएंगे। कहते हैं इस फोर्स में सिर्फ 5000 कमांडोज हैं, यानी इनकी तादाद बहुत कम रखी गई है, लेकिन असंभव से दिखने वाले लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इन्हीं पर भरोसा किया जाता है और ये इस काम के लिए खास तौर पर ट्रेन किए गए हैं। आप कह सकते हैं कि ये सैनिक देश के असली नायक हैं, जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आजकल जब भारत के न्यूज चैनल्स में टीआरपी की होड़ लगी हुई है और पूरा देश अलग अलग मामलों पर बातचीत कर रहा है, ऐसे में आप सबको यह भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक इस समय कितनी खतरनाक पोजीशंस पर देश के लिए तैनात हैं, लड़ रहे हैं और अगले 4 से 5 हफ्ते इतने महत्वपूर्ण हैं कि चीन की तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में हमें ऐसा लगा कि हम आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करें। और अब हम उस खबर की बात करना चाहते हैं जिस खबर के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जिस खबर के बारे में देश का मीडिया भी अब आपको कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मीडिया ने भी इसके बारे में बात करना बंद कर दिया है। और वो इसलिए क्योंकि इस खबर में टीआरपी वाला मसाला नहीं है, इस खबर में मनोरंजन नहीं है, इस खबर में सिर्फ चिंता है, इस खबर में सिर्फ सावधानियां हैं और इस खबर में ऐसे आंकड़े हैं जो किसी को भी डरा सकते हैं। और आप तो जानते हैं ऐसी खबरें देखना आजकल कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यकीन मानिए इस खबर का सीधा आपके जीवन से संबंध है और इसका आपके जीवन पर बहुत असर पड़ेगा। जी न्यूज के दर्शकों के लिए इस खबर को दिखाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका हित हमारे लिए टीआरपी से ऊपर है। भारत ने
कोरोना वायरस के मामले में आज 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आप शायद नहीं बनाना चाहेंगे, भारत भी ये रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहेगा। भारत में 83,883 नए मामले अब कोरोना वायरस के सामने आए हैं, लगभग 84,000 मामले। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में इतने मरीज दर्ज नहीं हुए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड भारत ने यह बना दिया है कि भारत में कल यानी 2 सितंबर को 11,72,179 टेस्ट एक दिन में किए गए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस के टेस्ट का लक्ष्य 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन का रखा था, लेकिन भारत अब इससे भी बेहतर स्थिति में है और एक दिन में हमने 11 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है। कुल मिलाकर भारत दुनिया में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन चुका है और जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या के हिसाब से भारत भले ही दुनिया में अब भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन नए केसेस यानी नए संक्रमण और हर दिन मौत की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। और वो लोग जो बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिन्हें अब कोरोना से नहीं मास्क से डर लगता है, उन्हें इस आंकड़े की, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 84,000 नए लोगों में कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला है। 84,000 नए लोग संक्रमित हुए हैं 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 1,045 रही। यह भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। कुल मरीजों के मामले में अभी सिर्फ अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे हैं और हमें पूरा यकीन है कि ब्राजील में मरीजों की संख्या भारत के मुकाबले क्योंकि सिर्फ 1.5 लाख ही अधिक है, यानी हमें पूरा यकीन है कि 1-2 दिन में भारत ब्राजील को पीछे कर देगा और भारत नंबर 2 पर आ जाएगा। भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे बुरा हाल है, उन राज्यों के नाम भी देख लीजिए। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भारत की राजधानी दिल्ली। अकेले इन 5 राज्यों में देश के 56% संक्रमित लोग मौजूद हैं, यानी आधे से भी ज्यादा संक्रमित लोग इन राज्यों में हैं। देश में इस समय लगभग 9,000 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। आज अगर यह स्थिति पैदा हुई है तो इसका बहुत बड़ा कारण है भारत के लोगों की सोच। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना वायरस के खतरे को अब भूल चुके हैं। लोगों ने अनलॉक शब्द का मतलब गलत समझ लिया। आप तो जानते हैं भारत सरकार लगातार अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर रही है। पहले अनलॉक 1 हुआ, फिर अनलॉक 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हुआ। भारत सरकार ने इसे ऐसा लगता है गलत नाम दे दिया। इसका नाम अनलॉक नहीं होना चाहिए था, क्योंकि भारत के लोगों को अनलॉक शब्द को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई, या ये कह लीजिए कि कुछ खुशफहमी हो गई। जब लॉकडाउन हुआ था तब ज्यादातर लोग वाकई में लॉकडाउन में चले गए थे, तब ज्यादातर लोग पूरी सावधानी बरत रहे थे। जब हमारे देश में सैकड़ों या कुछ हजार केस ही हुए थे, और अब जब हालत इतनी खराब हो गई है, तब लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, सब कुछ सामान्य मान लिया गया। लोगों ने अनलॉक का मतलब नॉर्मल समझ लिया। लोगों ने अनलॉक को अनलिमिटेड समझ लिया। लोगों ने समझ लिया कि इस अनलॉक का मतलब है सावधानियों को अनलॉक कर दिया जाए, जबकि अनलॉक के दौरान सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज आप जहां कहीं भी नजर डालें, पहले की तरह ही आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी। कई जगह तो लोग मास्क पहनना भी अब बंद कर चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मास्क को चेहरे से भी नीचे लटका कर रखते हैं और उनके मुंह और नाक अब खुले रहते हैं, यानी मास्क जो है सिर्फ दिखावे के लिए लगाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने तो मास्क लगाना ही अब बंद कर दिया है। ये हालात तब हैं जब डॉक्टरों ने मास्क को संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर तरीका बताया है। यानी भारत अब यह कह रहा है कि हमें कोरोना वायरस से नहीं, मास्क से डर लगता है।
एक अनुमान के अनुसार भारत में सिर्फ मास्क पहनने से दिसंबर के महीने तक 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश में ज्यादातर राज्य सरकारों ने मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा रखा है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं हमारे देश में कोई भी चीज अगर रोकनी होती है तो सरकार सबसे पहले उस पर जुर्माना लगा देती है, लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग मानने को तैयार नहीं होते। गुजरात में यह जुर्माना सबसे अधिक है 1000 रुपए का, दिल्ली में 500 रुपए का जुर्माना है और महाराष्ट्र में भी 500 रुपए का जुर्माना है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है, जिनसे लगभग 10 करोड़ रुपए बतौर जुर्माने के वसूले गए हैं। मास्क के अलावा बाजारों और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में अचानक से तेजी आ गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है अनलॉक के नाम पर लोगों की लापरवाही। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है। देश में कोरोना मरीजों की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं उतने ही ज्यादा संक्रमित लोगों के सामने आने की आशंका रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वो तब भी संक्रमण फैलाते चले जाते हैं। कोविड के टेस्ट से उनकी भी पहचान हो रही है, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, जिन्हें कोई बुखार नहीं आया, कोई खांसी नहीं आई, लेकिन जब उनका टेस्ट कराया जा रहा है तो वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। इससे संक्रमण को आगे फैलने से कम रोका जा सकता है। इसलिए ज्यादा टेस्ट के साथ सावधानी भी ज्यादा जरूरी है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली और दूसरे शहरों में अब मेट्रो भी शुरू होने वाली है। दिल्ली में 9 सितंबर से मेट्रो शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब मेट्रो शुरू हो जाएगी, बसें चलने लगेंगी, मॉल्स पहले ही खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, साप्ताहिक बाजार खुल चुके हैं, तो आने वाले दिनों में यह संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ेगा। इसे कोरोना के साथ जीना तो बिल्कुल नहीं कहते। इसे कोरोना को भूलकर लापरवाही से जीना कहते हैं। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। ऐसा लगता है कि लोग अब कोरोना से नहीं लड़ रहे, रोज इस जानलेवा बीमारी को चुनौती देने घरों से निकल रहे हैं। कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बाहर का खाना खाने के लालच में, तो कभी सिर्फ बाहर की हवा खाने के लिए ये मान चुके हैं कि कोरोना इनको नहीं होगा। कोरोना वायरस है, बट अभी हम लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, इस वजह से हम लोग मास्क लगा के निकलते हैं। कोरोना वायरस है भी और हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, इस वजह से मास्क हटा के एक्चुअली हम लोग यहीं से भी फोटो क्लिक करके आ रहे हैं। आपने मास्क तो लगा नहीं रखा, कोरोना खत्म हो गया है? बताइए। भाई बताएंगे। अरे मैम जाओ, आप जाओ। मास्क आएगा, ये देखो दे रखा है हमने। तो आपने लगा क्यों नहीं रखा? मैम लगाया रखा था, अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे इसलिए हटा दिया। जरूरी है लेकिन भूल गए, बेरोजगारी के कारण घूम रहे इधर उधर। और क्या, लोगों का डर है, उसको जो नोच के खा रहा है उसको। हम तो कमा रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कल के बदले में आज मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, गलती तो है, मास्क लगाना जरूरी है, अपनी सेफ्टी है सर। मुझे था जेब में भी उठाया, देखो ना मास्क है हमारे पास है। मास्क सुबह से डाल के थे सर, अभी खाना खाने गया था ना, इसलिए थोड़ा टाइम काट के रखा। साहब जिंदगी का डर है साहब, किसको नहीं है जिंदगी का डर, सबको है। अभी खाना खाया ना इसलिए काट लिया, अभी डाल लेता देखो। कट जाती है ऐसे में। भारत में कोरोना वायरस की हैसियत उस मेहमान जैसी हो चुकी है जो घर में जरूरत से ज्यादा टिक गया हो। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचकर बेफिक्र हो चुके हैं कि अगर कोरोना ने आपका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब नहीं बिगाड़ पाएगा, या इससे पहले कि आपने ये सोच लिया हो कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है तो जीवन भर के लिए आप कोरोना के खतरे से मुक्त हो चुके हैं, तो कोरोना पर रिसर्च कर रही देश की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया को सुन लीजिए। एक बार कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद आपको इम्यूनिटी देने वाली एंटीबॉडीज 2 महीने तक काम करेंगी या 1 साल, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
it is only 7-8 months old disease. So we do not know how long the immunity will persist. It is being studied, as said, in several studies across the world, not only in India, but across the world, and looking at how long the antibodies persist. One point to remember is that for respiratory viruses, whether it's influenza or flu, if you look at the historically, the flu vaccination is given every year. The influenza vaccination is given every year because the immunity does not last for or lasts up to a year. So that is the point about the immunity. For this virus, we are looking at it, and several studies are ongoing, not only in India but across the world. दिल्ली का उदाहरण हम सब के सामने है। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में मृत्यु दर में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये मत भूलिए कि ये वही दिल्ली है जहां सीरो सर्वे में 28% दिल्ली वालों के शरीर में इम्यूनिटी पाई गई। यानी कोरोना किसी को भी, कहीं भी और कैसे भी हो सकता है। दिल्ली में लगभग 50% की इंक्रीज है। ये 50% इसलिए दिख रहा है क्योंकि अचानक दिल्ली में मृत्यु बढ़ी है। आप सब लोग अवगत हैं कि लगातार न केवल एक्टिव केसेस की संख्या दिल्ली में घट रही थी, बल्कि मृत्यु की संख्या भी घट रही थी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों पैरामीटर्स पर, यानी एक्टिव केसेस के पैरामीटर पर भी और मृत्यु के पैरामीटर पे भी बढ़ोतरी हुई है। और उसको देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में फिर से दिल्ली सरकार के साथ एक्टिव एंगेजमेंट करके हम कदम उठा रहे हैं। मास्क चेहरे पर लगाना है, अटकाना नहीं है। 2 गज की दूरी हर जगह बनाकर रखनी है। लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि ये कोरोना काल वाला भारत है। इसका असर कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के तौर पर साफ नजर भी आने लगा है। मास्क न लगाने, बार बार हाथ न धोने और सामाजिक दूरी न बरतने का ये नतीजा है कि अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कहां से लोगों के दिमाग में ये धारणा आ गई कि अब तो कोविड कुछ खास बात रही नहीं, जो कि गलत बात है। अभी भी सीरियस हो सकते हैं, अभी भी पेशेंट बड़े गंभीर रूप से आ रहे हैं हमारे पास। सो ये जो फियर था या जो डर था, जो एक अनुशासन था, मैं बोलूँगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो कि बात ठीक नहीं है। हमारे को कानून का पालन करना चाहिए। ये जो हैंड वॉशिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है, कितनी स्टडीज़ आ गई कि अगर हम मास्क लगा के देखेंगे, लगा के रखेंगे, तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा इन्फेक्शन। सो मास्क लगाना है, और 6 मीटर की दूरी पे अगर हम रह रहे हैं तो वायरस उससे ज़्यादा नहीं चलता है ये वाला वायरस। कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसी गारंटी देने वाली वैक्सीन तो अभी तैयार नहीं हो सकी है। लेकिन मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ये खतरा 40% तक कम किया जा सकता है। अब ये आपको सोचना है कि जिंदगी बड़ी है या मौज मस्ती। वरुण भसीन और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहां हमारी आप सबसे यही अपील है कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सावधानियों को अनलॉक कर दें और उन्हें भूल जाएं। हो ये रहा है कि भारत के लोगों ने, ऐसा लगता है कि अब कोरोना वायरस से दोस्ती कर ली है। ऐसा लगता है जैसे भारत के लोगों ने कोरोना वायरस के साथ जीने की कसम खा ली है कि हम कोरोना वायरस के साथ अब ऐसे ही रहते रहेंगे, जीते रहेंगे, और कोरोना वायरस भी सदा के लिए यहीं रहेगा। समझौता हो गया है भारत के लोग और कोरोना वायरस के बीच में, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, शहर में, गांव में, कहीं भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे लोग अब निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। ज्यादातर लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अब सारे दफ्तर खोल दिए जाएं, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं, परीक्षाएं पहले की तरह होने लगें और ट्रेन पहले की तरह चलने लगे, मेट्रो पहले की तरह चलने लगे, सारे बाजार पहले की तरह खुल जाएं। लेकिन सावधानी कोई नहीं बरतना चाहता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में कोरोना के मरीजों के मामले में अब अचानक से एक वृद्धि आई है। दिल्ली जैसे शहर में भी अचानक से एक वृद्धि आई है। और अगर सावधानी नहीं बरती गई, अगर लोगों ने यह मान लिया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब सामान्य हो चुका है,
तो भारत की स्थिति एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत खराब हो जाएगी और भारत के लिए आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक यह माना जाता रहा है कि नई चीजों की खोज के मामले में भारतीय लोग हमेशा से पीछे रहते हैं। हम लोग हमेशा से दूसरे देश कोई ना कोई नई खोज करते थे, कोई ना कोई नया इनोवेशन करते थे और हम लोग एक बहुत बड़ा बाजार बन जाते थे और भारत के लोग एक बाजार की तरह इनोवेशन किसी दूसरे को करने देते थे और बाद में पैसा खर्च करके उस इनोवेशन को या उस नए प्रोडक्ट को हम खरीदने में विश्वास रखते हैं। हम हमेशा ये सोचते आए हैं कि हम इनोवेशन नहीं करेंगे, कोई नया प्रोडक्ट नहीं लाएंगे, दूसरे देश के लोग लाते रहेंगे और हम पैसा देकर उसे खरीद लेंगे, लेकिन हम खुद मेहनत नहीं करेंगे। लेकिन अब ये सोच बदल रही है और यह बहुत अच्छा संकेत है। भारत पहली बार दुनिया के 50 ऐसे बड़े देशों में शामिल हो गया है, यानी टॉप 50 देशों में शामिल हो गया है जहां नई खोज हो रही है। यानी इनोवेशन के मामले में भारत दुनिया के पहले 50 देशों में आ गया है। दुनिया की मोस्ट इनोवेटिव कंट्रीज के लिस्ट में भारत अब 48वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO हर साल इनोवेशन करने वाले देशों की एक लिस्ट जारी करता है, यानी नई नई खोज करने वाले देशों की लिस्ट जारी करता है कि किसने कितनी ज्यादा नई इनोवेशंस की हैं, किस देश में नई खोज हुई है। ये संस्था जो है, ये संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में नई खोजों के पेटेंट और कॉपीराइट की निगरानी करती है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर के यानी टॉप 5 जो देश हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। पूरी दुनिया में नई खोज यानी इनोवेशन के मामले में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, स्वीडन दूसरे नंबर पर है, अमेरिका तीसरे नंबर पर है, ब्रिटेन चौथे नंबर पर और नेदरलैंड्स 5वें नंबर पर है। इसमें भारत को निम्न आय वर्ग वाले देशों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रखा गया है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में भारत का नंबर 15वां है। इस रिपोर्ट में भारत में इनोवेशन में आई तेजी का श्रेय दिल्ली और मुंबई के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT और बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी IIS को दिया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर फोकस पहले के मुकाबले अब बढ़ा है। यहां पर हम नोबेल पुरस्कार विजेता और अमेरिका के जाने माने फिजिसिस्ट डेविड ग्रॉस के एक विचार का जिक्र जरूर करना चाहेंगे। उनके मुताबिक मेक इन इंडिया भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन यह दूसरों पर निर्भर होकर नहीं होना चाहिए। भारत को खुद ही आविष्कार करने चाहिए, नई खोज करनी चाहिए। आविष्कारों से ही नए प्रोडक्ट्स विकसित होते हैं। इसलिए मेक इन इंडिया के नारे को बदलकर डिस्कवर, इन्वेंट एंड मेक इन इंडिया कर दिया जाना चाहिए। कोई देश कितनी खोज यानी इनोवेशन करता है, इसका सीधा संबंध इस बात से होता है कि वहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कितना बजट खर्च किया जाता है, यानी कितना पैसा खर्च किया जाता है। इसे GDP यानी वहां के कुल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के तौर पर देखा जाता है, यानी कौन सा देश अपने GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा इनोवेशन पर या R&D पर खर्च कर रहा है। अब आपको यह भी जानना चाहिए कि दुनिया भर के कौन कौन से देश R&D पर अपनी GDP का कितना प्रतिशत खर्च करते हैं। इस मामले में सबसे आगे है साउथ कोरिया, जो अपने कुल GDP का 4.3% हिस्सा नई खोज और आविष्कारों पर खर्च करता है। दूसरे नंबर पर इजराइल है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर अपने GDP का 4.2% हिस्सा खर्च करता है। इसके बाद जापान का नंबर आता है, जो अपने GDP का 3.4% हिस्सा R&D पर खर्च करता है। चौथे नंबर पर फिनलैंड है और स्विट्जरलैंड है। ये दोनों 3.2% बजट नई खोज के लिए खर्च करते हैं। भारत अपने कुल GDP का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही नई खोजों पर यानी इनोवेशन पर खर्च करता है। ये सारे आंकड़े जो हमने आपको दिखाए हैं, ये वर्ष 2019 के आंकड़े हैं, क्योंकि 2020 के आंकड़े अभी आए नहीं हैं। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो बाकी के जो देश हैं, साउथ कोरिया जैसे देश जो हैं, वो R&D उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो इनोवेशन को कितना महत्व देते हैं और हमारा देश इनोवेशन को कितना महत्व देता है। किसी भी देश के लोग कितनी नई खोज करते हैं, इसका पैमाना होता है पेटेंट,
क्योंकि जब भी कोई नई खोज होती है तो उसका पेटेंट कराना होता है ताकि कोई और उसकी नकल ना कर पाए या कोई और उस खोज का, उस इनोवेशन का श्रेय ना ले पाए। अगर आपने पेटेंट करा लिया है तो इसका श्रेय आपको ही दिया जाएगा और आपका ही कॉपीराइट उस पर रहेगा। हम आपको वर्ष 2017 के आंकड़ों के हिसाब से आज ये बताएंगे कि पेटेंट के मामले में कौन कौन से देश आगे हैं, यानी किस किस देश की तरफ से कितने पेटेंट्स कराए जाते हैं। ये आंकड़े नए नहीं हैं, 2017 के हैं, लेकिन इससे आपको कुछ आइडिया आ जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में चीन इस मामले में सबसे आगे निकल चुका है। वही चीन जिससे लड़ाई लड़ने के लिए आजकल हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे है। चीन ने वर्ष 2017 में लगभग 13 लाख पेटेंट के आवेदन दिए थे। इसके बाद अमेरिका का नंबर है जिसने 6 लाख से ज्यादा पेटेंट के आवेदन दिए। भारत का स्थान इस लिस्ट में बहुत नीचे है। 2017 में भारत ने पेटेंट के लिए सिर्फ 47,000 पेटेंट के आवेदन भेजे थे। इसके अभी ताजा आंकड़े नहीं आए हैं, इसलिए 2017 के आंकड़ों से ही हम काम चला रहे हैं। जब ये नए आंकड़े आएंगे तो इसमें हम आपको ताजा स्थिति भी बताएंगे और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब नए आंकड़े आएंगे तो भारत अब 2017 के मुकाबले काफी आगे निकल चुका होगा। इनोवेशंस और रिसर्च के क्षेत्र में भारत अभी तक पिछड़ा क्यों रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी एक बड़ी वजह है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर बहुत कम खर्च करना। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के मुताबिक भारत में जीडीपी का सिर्फ 0.7% हिस्सा ही शोध पर खर्च किया जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसे कम से कम 2% तो होना ही चाहिए। भारत का यह हिस्सा दक्षिण अफ्रीका और मलेशिया जैसे देशों द्वारा रिसर्च पर खर्च किए जाने वाले पैसे से भी कम है। भारत का पड़ोसी देश चीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर जीडीपी का 2% से ज्यादा हिस्सा खर्च करता है। भारत में शोध और अनुसंधान के महत्व की अब तक अनदेखी होती रही है। सरकार और बड़ी बड़ी कंपनियों की सोच ये रही है कि उसे पके पकाए आविष्कार और तकनीकें मिल जाएं। जैसा हमने आपको पहले बताया, सब लोग भारत में ये सोचते हैं कि उन्हें खुद कोई नई खोज करने की जरूरत नहीं है, कोई नया इनोवेशन, कोई नया प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे आसान ये है कि विदेशों में जो नया प्रोडक्ट बना है, जो नया इनोवेशन हुआ है, पैसे देकर उसे खरीद लो। इसीलिए हमारे देश में लोग R&D पर खर्चा नहीं करते, बल्कि उस प्रोडक्ट को ही पैसा खर्च करके खरीद लेते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें खुद इसके लिए कोई खून पसीना ना बहाना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, कोई खर्चा ना करना पड़े। और यही वजह है कि भारत के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक देश छोड़कर विदेश में बस जाते हैं, क्योंकि यहां लोग R&D पर ना तो पैसा खर्च करना चाहते हैं और ना ही हमारे देश में सरकार के पास या प्राइवेट कंपनियों के पास उतना धैर्य है कि वो इतना लंबा इंतजार कर सके। क्योंकि आप जानते हैं जब शोध होता है, रिसर्च करनी होती है, तो कई बार उसमें समय लगता है। जैसे अगर आप अभी देखें तो कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए लगातार शोध हो रहे हैं, लगातार अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी के हाथ कुछ लगा नहीं है। मतलब ऐसी चीजों में समय लगता है और इसके लिए आपके पास बहुत धैर्य, बहुत पेशेंस होना चाहिए और पैसा भी होना चाहिए। अपने वैज्ञानिकों पर पूरा यकीन होना चाहिए कि वो ऐसा कर दिखाएंगे। उन्हें प्रोत्साहित करने की जरूरत होती है। अब पहली बार देश में इस सोच में बदलाव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत, इस तरह के अभियान भारत में नई खोज करने का माहौल पहले से ज्यादा बेहतर बना रहे हैं। अब उम्मीद है कि चीन के सस्ते माल पर रोक के बाद इनमें और भी सुधार आएगा। अभी आपने देखा होगा कि भारत ने इतने सारे चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है और भारत के करोड़ों लोग इन चाइनीज ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। भारत के करोड़ों लोग चाइनीज ऐप्स के जरिए ऑनलाइन गेम्स खेल रहे थे, PUBG जैसे गेम्स खेल रहे थे। और ये हम इसलिए करते थे क्योंकि हमारे देश में ऐसी ऐप्स शायद पहले थी नहीं। हमारे देश में ऑनलाइन गेमिंग, आज भी हम उसके मामले में बहुत पीछे हैं। आप ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में जब जाएंगे तो पाएंगे कि चीन का पूरा वर्चस्व है। आप कोई भी गेम उठा लीजिए, ऑनलाइन गेम, उसके तार कहीं ना कहीं आपको चीन से ही जुड़े मिलेंगे। यानी चीन ने बहुत मेहनत की है इन सब चीजों पर। अब जब ये सारे ऐप्स भारत के बाजारों से गायब हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होगा, एक खाली स्थान पैदा होगा और उस खाली स्थान को भारत के लोग, भारत की कंपनियां, भारतीय ऐप्स और भारत के वो सारे लोग जो इनोवेशन करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ा मौका है कि वो इन 50 करोड़ स्मार्टफोन्स के लिए
नए नए ऐप्स बना सकते हैं, उन 70 करोड़ इंटरनेट कनेक्शंस के लिए नए नए ऐप्स बना सकते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। अब आप सोचिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा बाजार है, उसके बावजूद इस बाजार के दरवाजे भारत के ही लोगों के लिए बंद थे, क्योंकि भारत के लोगों के पास कोई नया इनोवेशन नहीं था, कोई नई खोज नहीं थी, कोई नया प्रोडक्ट नहीं था। क्योंकि भारत के लोग, भारत की कंपनियां हमेशा बने बनाए को खाने में विश्वास रखते हैं, बने बनाई चीज को बाहर से खरीद लाने में विश्वास करते हैं, और इसीलिए बाकी की जो दुनिया है वो भी हमें एक प्रोडक्शन हब की तरह नहीं देखती, एक इनोवेटिंग कंट्री की तरह नहीं देखती, वो हमें सिर्फ एक बाजार की तरह देखते हैं, एक ऐसा बाजार जो उनके सारे माल को मुंह मांगे दाम पर खरीद लेगा, एक ऐसा बाजार जहां लोग आलसी हैं, जहां लोग शायद काम नहीं करना चाहते, इसलिए उन्हें आप कोई भी सामान दुनिया भर में, चाहे वो कहीं भी बना हो, यहां आकर आप बेच लीजिए। घटिया से घटिया सामान भी इस बाजार में आपको अच्छा दाम दे सकता है। लेकिन अब भारत में स्थितियां बदलने लगी हैं और आगे आने वाले वर्षों में यह स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दुनिया भर के देश रिसर्च और नई तकनीक को खोजने में जुटे हुए हैं, तो भारत सरकार क्या कर रही है? आपको यह भी जानना चाहिए कि सरकार की तरफ से आपको क्या क्या सुविधाएं या कितना प्रोत्साहन मिल सकता है। वर्ष 2016 में सरकार ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति की घोषणा की थी। इसमें नई खोज और उन खोजों के व्यावसायिक इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए नियम तय किए गए थे। उम्मीद है कि नई नीति से अगले 10 वर्षों में भारत को इनोवेटिव इकोनॉमी यानी नई खोज वाली अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति के जरिए सरकारी खर्चे पर चलने वाली शोध संस्थाओं को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तेजी के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं। हमारे देश में जितने भी युवा हैं और जो परिवार इस समय हमें देख रहे हैं, उन सबसे हम ये कहना चाहेंगे कि आपके परिवार में जो युवा हैं और आपको ऐसा लगता है कि वो युवा कुछ नया बना सकते हैं, कुछ नई खोज कर सकते हैं, कुछ नया इनोवेशन कर सकते हैं, इन्वेंशन कर सकते हैं, तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें बढ़ावा दीजिए। और अब हमारे देश में एक माहौल ऐसा बन रहा है जब आपको ये इनोवेशन करने के लिए सरकार से भी मदद मिलेगी, प्राइवेट कंपनियों से भी मदद मिलेगी, और आप इसका कमर्शियलाइजेशन भी कर पाएंगे, व्यवसायीकरण भी कर पाएंगे, आप इससे पैसा भी कमा पाएंगे। क्योंकि इससे पहले बहुत बार ऐसा होता था जब हमारे देश के अलग अलग कोनों में लोग कोई नए नए प्रोडक्ट तो बनाते थे, नई खोज कर लिया करते थे, लेकिन उस खोज को खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था, उस प्रोडक्ट में पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं था। लेकिन अब आपको उसके लिए पैसा भी जरूर मिलेगा। यहां हम 3 मिनट का एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि रशिया में विपक्ष के नेता को जहर देने का मामला कैसे अब राष्ट्रपति पुतिन के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं, जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं।
क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे। रशिया के विपक्षी नेता एलेक्सी नावल्नी की तबीयत खराब होने को लेकर अब एक नया रहस्य आ गया है। 20 अगस्त को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तब दावा किया गया था कि एलेक्सी को चाय में जहर दिया गया है। जर्मनी में इलाज करवा रहे एलेक्सी की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई है कि उन्हें नोविचोक नाम का जहर दिया गया था। साइबेरिया से मॉस्को की फ्लाइट लेने से पहले एक कॉफी शॉप में एलेक्सी ने यह जहरीली चाय पी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया और एलेक्सी तभी से कोमा में है। नोविचोक सैनिक इस्तेमाल में आने वाला एक ऐसा नर्व एजेंट है जो सोवियत संघ ने विकसित किया था, यानी उस जमाने में विकसित किया गया था, सोवियत के संघ के जमाने में। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रासायनिक हथियारों में से एक माना जाता है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक पूरी दुनिया में रशिया के अलावा यह केमिकल किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए रशिया को जब किसी की हत्या करनी होती है तब इसी केमिकल का इस्तेमाल होता है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने इस मामले में रशिया से जवाब मांगा है। एलेक्सी की हत्या की कोशिश के लिए एंजेला मर्केल ने रशिया को आरोपी माना है और एलेक्सी का जो इलाज है वो भी इस समय जर्मनी में ही चल रहा है। इस मामले पर अपनी स्थिति साफ करने के लिए अब रशिया से कहा गया है। जर्मनी अब यूरोपीय संघ और नेटो सहयोगियों से इस पर चर्चा करने के बारे में भी सोच रहा है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह के रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। जर्मनी ने इसके अलावा रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाने वाले संगठन OPCW को भी इसकी जानकारी दे दी है। Der russische Botschafter wurde am Nachmittag im Auswärtigen Amt über die Untersuchungsergebnisse unterrichtet. Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt. Es stellen sich jetzt sehr schwerwiegende Fragen, die nur die russische Regierung beantworten kann und beantworten muss. एलेक्सी को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुछ सबसे कड़े आलोचकों में और विरोधियों में से एक माना जाता है। ऐसे में जहर देकर उनकी हत्या की साजिश का खुलासा राष्ट्रपति पुतिन के लिए काफी मुश्किलें पैदा कर सकता है और लगभग सभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और देशों ने इस घटना की निंदा की है। एलेक्सी को पुतिन का कट्टर विरोधी माना जाता है। उन्होंने कई बार पुतिन विरोधी रैलियां की हैं, जिसके बाद उन पर हमले हुए हैं। कुछ महीने पहले सरकार विरोधी प्रदर्शन आयोजित करने के आरोप में उन्हें 30 दिनों तक जेल में रखा गया था। एलेक्सी के समर्थकों का दावा है कि वहां भी उन्हें जहर देने की कोशिश की गई थी। 2017 में एलेक्सी ने पुतिन के विरोध में एक बड़ी रैली की थी, जिसके बाद पुतिन के एक समर्थक ने उनके ऊपर रंग फेंक दिया था। उस वर्ष उन्होंने रशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और एक बहुत बड़ा सरकार विरोधी धरना आयोजित किया था। रशिया में सरकार विरोधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का लंबा इतिहास रहा है। इससे पहले भी रशिया की सरकार पर विरोधियों को जहर दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं। आपको याद होगा, वर्ष 2006 में पुतिन के विरोधी रहे रशिया के एक पूर्व जासूस अलेक्जेंडर को ऐसे ही जहरीली चाय पिलाकर जहर दिया गया था। उस चाय में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला हुआ था। फिर वर्ष 2018 में भी रशिया के एक पूर्व जासूस और डबल एजेंट
उसे भी यही नोविचॉक देकर मारा गया था, इसी रसायन से मारा गया था। तब ब्रिटेन ने इसके पीछे रशिया की मिलिट्री इंटेलिजेंस की साजिश कहकर इसे बताया था। इसी तरह वर्ष 2018 में एक न्यूज वेबसाइट चलाने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को भी ऐसे ही जहर देकर मार दिया गया था। यानी रशिया में, वहां की राजनीति में इस तरह अपने विरोधियों को जहर देकर मारने की पुरानी परंपरा रही है और जो अब एक बार फिर से सामने आ गई है। अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत के परिवारों में इस समय क्या चल रहा है। भारत करीब 4 महीनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन में था और इस दौरान ज्यादातर लोगों ने अपना समय अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताया था। आपको लगता होगा कि भागदौड़ भरे इस जीवन में जब लोग एक दूसरे के करीब आए होंगे, एक साथ उन्होंने समय बिताया होगा, तो उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए होंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में हुआ ठीक उल्टा। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत के परिवारों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अकेले मई के महीने में घरेलू हिंसा की 392 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल मई में 266 शिकायतें दर्ज की गई थी। इस साल जनवरी में महिला आयोग में दर्ज होने वाली शिकायतों में 18% मामले घरेलू हिंसा के थे, जो मार्च में बढ़कर 24% तक पहुंच गए थे। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि गूगल पर घरेलू झगड़े या घरेलू हिंसा से जुड़ी हेल्पलाइन को खोजने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बढ़ गई है। अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पर ऐसे हेल्पलाइन नंबर खोज रहे थे। 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच घरेलू हिंसा की सबसे ज्यादा शिकायतें आईं। इस दौरान 3 महीनों में 239 महिलाओं ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2500 महिलाओं ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांगी। इसमें से 600 महिलाओं ने हिंसा की रिपोर्ट की थी। 23 महिलाओं ने बलात्कार की रिपोर्ट की, जबकि 1612 महिलाओं ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार महिला आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 महीनों में 1400 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 70% मामले घरेलू हिंसा के हैं। घरेलू हिंसा के पीछे की वजह बहुत छोटी सी है। कहीं पत्नी द्वारा खाना न पकाने की वजह से झगड़ा हुआ, तो कहीं पति का देर से सोकर उठना झगड़े की वजह बना, कहीं खाने में नमक तेज होने की वजह से लड़ाई हुई, तो कहीं मोबाइल फोन पर ज्यादा देर तक बात करने से विवाद शुरू हो गया। हमने आज इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन में कई परिवार आपस में बेहतर तरीके से जुड़ने के बजाय टूटने क्यों लगे। बहुत लंबे टाइम से बहुत साथ रहते थे, हैप्पी रहते थे, अब वही लोग तलाक केस फाइल कर रहे हैं। लॉकडाउन में काम नहीं, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, उनको मारना तोड़ना, जाओ काम पे जाओ बोलकर जुल्म करते थे उनके ऊपर। कंडीशन यहाँ तक आ गई है कि वोमेन सुसाइड कर रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम समय बिताएं तो दोनों को शिकायतें रहती हैं, लेकिन अगर 24 घंटे साथ रहने लगे तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट ये है कि घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने की वजह से कई तरह की दूसरी परेशानियां सामने आ रही हैं। लगातार घर में बने रहने की वजह से लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। पिछले 5 महीनों में घरेलू हिंसा के मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। पति पत्नी की केमिस्ट्री लॉकडाउन ने बिगाड़ दी है। एक टीचर हूँ और मेरे ट्यूशन चलते हैं घर पे, तो वो ट्यूशन पिछले 2-3 महीनों से बंद हुए हैं, जिसका असर मेरी फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम मेरे पर्टिकुलर में बिजी रहती थी। अब मैं बिजी नहीं रहती तो मेरा सारा स्ट्रेस मेरे बच्चे पर निकलता है, क्योंकि वो बिजी रहने की मुझे आदत हो गई थी।
और उस टाइम मैं फ्री रहती हूँ तो मुझे इरिटेशन सा होता है कि नहीं, मुझे इस टाइम बिजी रहना है, तो वो स्ट्रेस मैं मेरे बच्चे पे निकालती हूँ। पहले होता क्या था कि हम लोग डिसिप्लिन थे कि ऑफिस जाना है, आना है, टाइमली बच्चे के टाइम देना है। अब क्या है, घर पे ही रहते हैं। कई बार सारे अच्छे मोमेंट हम 24 आवर्स रहते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम लोग अच्छे उसमें, कभी क्या होता है कि शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि ऑफिस का इतना स्ट्रेस है, वर्क फ्रॉम होम है, काम ज़्यादा होता है, बच्चे पे ध्यान दे तो बच्चा भी इरिटेट होता है। तो इन सब चीज़ों में कभी कभी आपस में बॉन्डिंग होते हुए भी अननेसेसरी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं। ये हाल केवल देश के एक इलाके का नहीं है। हैदराबाद में भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं। चोर के साथ होती, पीना, आना, लड़ना, मारम पीटी करना। अब ये शराब का बंद था ना, ये लॉकडाउन में, जब 4 महीने 3 महीने कुछ नहीं पिए हो ना, उसके बाद में फिर पीना, लड़ना, मारना, कुछ भी ऐसा करे तो 15 दिन महीने में एक बार घर को आते। मैं कहना ऐसे कहाँ बोले, पीना, सो जाना, रोना पे। तो किराए घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा हुई तो पहली बार तो किराए घर आने दे रहे, कोई भी घर खाली कराते जा रहे, 2 महीने 3 महीने रख रहे हैं। बस हुई थे कि नहीं हमारा घर बदलाव होता। लॉकडाउन जैसा बढ़ते गया वैसे घर में बैलेंस शुरू होते गया। और दोस्तों, पैसों की प्रॉब्लम और खाने की प्रॉब्लम ऐसा होने की वजह से उनके हस्बैंड मेंटल हो गए। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं। कहीं खाना ना बनाने या अच्छा ना बनाने की वजह से झगड़ा हो रहा है, तो कहीं देर से जागने या टीवी देखने की वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। वजह भले ही छोटी है, लेकिन उसका बड़ा असर रिश्तों पर पड़ रहा है। मेरे यहाँ भी ये सब केस बहुत सारा आया है, व्हाट्सएप से आया है, हर तरह से केस आता है। तो हम लोग बात करके उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो पति अपना अलग दुखड़ा रोता है, पत्नी अपना अलग दुखड़ा रोती है। हस्बैंड घर में है, वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। तो वो डिप्रेशन जो है, वो डिप्रेशन ही आज के समय में सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस लॉकडाउन में फैमिली डिस्प्यूट का। तो ये लॉकडाउन आज के समय में अभिशाप की तरह आया और वो परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अब इसमें समझदारी इसी में है कि इस परिस्थिति से लड़ाई लड़ा जाए, इसको समझा जाए, अब इसके साथ जीने का प्रयास किया जाए। अस्पतालों में पिछले 5 महीनों में सेल्फ इंजरी यानी खुद को चोट पहुंचाने के मामले काफी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में जहां पहले साल भर में 8 से 10 केस आते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट तो कम हो गए, लेकिन एकदम सडनली पता चला कि हाथ वाली इंजरीज वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो अक्सर हमारे पास साल में 8, 7, 10 पेशेंट्स ऐसे केसेस आते थे, वो हफ्ते में हमारे पास 3, 4, 5 केसेस ऐसे आने स्टार्ट हो गए। और ये सारी की सारी इंजरीज काफ़ी सीवियर इंजरीज थी। घरेलू हिंसा के पीछे कारण ज्यादातर यही है कि लोगों में तनाव बहुत है। यही तनाव लोग अब संभाल नहीं पा रहे हैं। हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो, कोविड आउटब्रेक की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी एडवर्सिटीज आ गई हैं, लाइक लॉस ऑफ लाइवलीहुड, अनसर्टेनिटी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। उसकी वजह से उनको वेंट आउट करने के लिए सही तरीका नहीं मिलता है एंड वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकल रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों में कई वजहों से मानसिक तनाव बढ़ा है। किसी का रोजगार चला गया तो किसी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कई लोग कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा डर लेकर बैठे हैं। स्ट्रेस कम करने के तरीकों पर भी लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक तनाव उन्हें जल्दी गुस्सा दिला रहा है और गुस्सा ही घरेलू हिंसा का कारण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप एक महिला हैं और आपके साथ भी किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हो रही है, तो सबसे पहले आपको अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा आप राष्ट्रीय महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और ये नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप यहां नोट कर लीजिए। ये नंबर है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। और अब आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि किस अभिनेता को बांग्ला सिनेमा का महानायक कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है।
समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है।
समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, yes, yes. I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है। समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार, ताजा खबरों का पूरा संसार। मॉर्निंग जी रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। सपने एक स्पर्श से जगते हैं। कहते हैं ना, पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है। Yes, I know. How can I forget that? अरे दिव्या, कितना टाइम लगेगा यार? मम्मा मेरा होमवर्क। अरे बहू, पूजा की थाली। परिवार की आशाएं बेड़ियां बनेंगी या पंख, चुनना आपको है।
समय की धड़कन नहीं बदलती, समय के साथ हम बदलते हैं। क्योंकि जब अपने संस्कारों के लिए सम्मान हो तो दुनिया झुकती है। जी न्यूज़, परंपरा संस्कारों की। सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज़ पर। हर रोज नई सुबह की नई शुरुआत, देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, राजनीति की सरगर्मियां, बिजनेस वर्ल्ड की कामयाबियां, खेल की दुनिया की जीत हार। और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 301 में आज ही के दिन रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो नामक देश की स्थापना हुई थी। माना जाता है कि यह अपना संविधान तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश था। सिर्फ 61 वर्ग किलोमीटर में बसा ये देश चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। इसकी आबादी सिर्फ 33,785 है। दुनिया में 3 ही ऐसे देश हैं जो पूरी तरह किसी और देश से घिरे हुए हैं, यानी चारों तरफ से। सैन मैरिनो के अलावा वेटिकन सिटी भी इटली से ऐसे ही घिरा हुआ है, जबकि लेसोथो दक्षिण अफ्रीका से घिरा हुआ है। सैन मैरिनो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था और क्षेत्रफल के हिसाब से यह दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। वर्ष 1875 में आज ही के दिन अर्जेंटीना में पोलो नामक खेल की आधिकारिक शुरुआत हुई थी। इसीलिए आज अर्जेंटीना को उसका श्रेय दिया जाता है। हालांकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ईरान में भी पोलो खेले जाने के सबूत मिलते हैं। पोलो को द स्पोर्ट ऑफ किंग्स यानी राजाओं का खेल भी कहा जाता है। यह खेल अर्जेंटीना के जरिए पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुआ और इस समय दुनिया के 70 से ज्यादा देशों में पोलो खेला जाता है। वर्ष 1939 में आज ही के दिन फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम ने जर्मनी के खिलाफ अलाइड ग्रुप बनाकर युद्ध का ऐलान कर दिया था। इसी युद्ध ने आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध का रूप ले लिया। द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1939 से 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, जिसके बाद पहले जर्मनी को चेतावनी दी गई और जब जर्मनी ने चेतावनी को नजरअंदाज किया तो अलाइड ग्रुप ने 2 दिन बाद यानी आज ही के दिन युद्ध का ऐलान कर दिया था। और वर्ष 1926 में आज ही के दिन बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता उत्तम कुमार का कोलकाता में जन्म हुआ था। उनका असली नाम अरुण कुमार चटर्जी था। उत्तम कुमार को बांग्ला सिनेमा का महानायक कहा जाता है। वर्ष 1954 में अभिनेत्री सुचित्रा सेन के साथ आई बांग्ला फिल्म अग्नि परीक्षा ने उत्तम कुमार को एक खास पहचान दिलाई। उन्होंने 10 से ज्यादा हिंदी फिल्मों में भी काम किया, जिनमें अमानुष और छोटी सी मुलाकात प्रमुख हैं। वर्ष 1966 में उत्तम कुमार ने मशहूर निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म नायक में भी काम किया था और इस फिल्म को उत्तम कुमार की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि फिल्म संगम में पहले राजेंद्र कुमार का रोल उत्तम कुमार को ही दिया जा रहा था, लेकिन उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। पहला कदम ही सफलता की सीढ़ी बनता है।